Namaskar, this is Tabassum Aranjo, and welcome to the Samavesh podcast, a grassroots perspective of inclusive philanthropy in India. To know more about our podcast, please refer to the link in the description of the video. We showcase on our podcast today Sarthak Maitra, a flagship mentorship program of Sarthak Welfare Foundation, a non-profit organization in Kothurud, Pune, which works for equality of education across all sectors in Maharashtra. Sarthak Maitra is a mentorship process specially designed for students from the underserved communities. It is a process which focuses on extending financial support, counseling, guiding, skilling, mentoring, and also extending emotional support where required to build enriching relationships based on trust and sharing of expertise. It is a journey, it's a 5 year long journey which looks for positive transformation through engaging and meaningful interactions which fulfill the lives of the mentor and the mentee alike. According to Oprah Winfrey, the famous American host and TV producer, a mentor is someone who allows you to see hope inside yourself. Mentoring is the unconditional acceptance of a student while guiding them on the path of growth and personal development. A mentor encourages positive choices, promotes high self esteem, and introduces the young mentee to new ideas which will help them to realize their dreams and aspirations. Our guest on the podcast today is Ms. Swati Namjoshi, founder and director of Sarthak Welfare Foundation. Welcome, Swati, and thank you for joining us on the Samavesh podcast. Thank you so much, Tabassum ji, for inviting me for the podcast and allowing me to share so much about Sarthak. Thank you so much. Before founding Sarthak in 2017, Swati had a flourishing 16-year career as a corporate banker in the foreign banking sector, but she chose to give it all up to pursue her passion for social service. Swati is a firm believer of be the change that you want to see in the world, and she strongly feels that positive change is always possible in all sectors through sustainable, consistent efforts, especially with youth and students. So, Swati, take us through your life's journey and how it all started, your transition from being a corporate banker, successful corporate banker, to a philanthropist and founding of Sartak. Wow. Uh, thank you, Tabassum ji. Uh, I would say that I was very fortunate to be born and brought up in a very educated and socially responsible childhood in a household. Basically, my parents, my father was scientist, but he was extremely socially responsible person. And that's why the values of honesty, integrity, helping somebody out, and supporting the weaker section was always there. It was imbibed in my blood. And I was socially inclined. But at the same time, I was working as I got educated in commerce background and I did my MCOM MBA. I started working in a foreign bank. And अच्छा खासा चल रहा था. For 16 years, I have been doing great. I was being paid fantastically, fabulously. But at one moment, a realization struck me. Okay, I'm not able to make any positive difference in anyone's life, apart from me, of course. I'm doing good, but I'm not able to. Absolutely. Yeah. And is this the purpose of my life? मुझे लगता है कि हर एक इंसान के लाइफ में ये होता ही होगा, आता है मूवमेंट आता है. And is this the purpose of my life? And of course, the answer came no. And मैं सोच में पड़ गई कि यार मुझे life is very short and we need to do something which actually makes us happy and purposeful and kuch meaning de life ko. So I decided to quit my job and I started uh, uh, you know I started searching कि मैं क्या कर सकती हूँ. I wanted to help and of course I wanted to be in social work. That was always a motive. But कैसे करना है और क्या करना है, कौन से सेक्टर में करना है, that was I was not aware of it. Apparently I started meeting lots of people. I started meeting lots of people from NGOs, from different backgrounds. I started meeting people who are already working in various fields.
और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अगर सोशल वर्क ही करना है तो मुझे उसके बारे में सीखना पड़ेगा. And so I went back again to a college. I did my NGO governance and management for entire. I got the degree. Mhm. I also decided कि मुझे अगर बच्चों के साथ काम करना है तो I need to understand the psychology of the child. Child So psychology समझना yes, जरूरी so I did my 1 year degree from 1 year graduation from for child counseling and the psychological counseling part. I also did the certified course in career counseling. ये सब करने के बाद apparently similarly I was working as an intern. You know, I started working with Tech Mahindra Foundation. I was also part of CSR Pune. I was working with Shamchai Foundation. So there are a number of organizations है. जिसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ because I was able to learn Mhm. कि actual ground reality क्या है. What are the problems that are faced by the society? What are the problems कि हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? Mhm. So ये सब होने के बाद I think one fine day I realized चलो अभी 7 मैं अपना साल शुरू करती हूँ. and my father was my greatest support. So he decided, we both of us decided that हमें हमारा कुछ फाउंडेशन करना चाहिए. So we decided to shift all our investment and जो भी था सेविंग बचा कुचा था मेरा और मेरे डैड का, we shifted to a foundation called Sarthak Welfare Foundation. So although I left my job in 2010, a Sarthak Welfare Foundation I was able to establish in 2017. The 7 years you took to It, gain knowledge in the field and absolutely, yeah. get some expertise on how to do it. Correct. Eh, That's great, Swati. It's a very interesting thing. Most NGOs, as I've seen, they extend only financial support Yeah. to students from weaker sections of society by giving them a scholarship. Yes. But Sarthak's ideology is different. They focus on adopting the student totally Yeah. and totally hand-holding them till they, through counseling, Yes. skilling, Yes. mentoring, to see that they become mature, educated, and Correct. capable individuals who are respected in the communities and are gainful Yeah. contributors also to their communities. Yes. So, what is the ideology behind this concept of handholding and adoption? जैसा कि मैंने अभी कहा कि 7 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा. And I think you may be, everybody is aware of the problems, you know, the problems right now. There is a huge gap between SSC pass out Mm. and up to graduation. और ये क्यों होता है? Because first of all, of course, poverty, Financial. lack of financial support. लेकिन दूसरी important चीज ये है कि students are not aware of their own abilities. They are not even aware of their strength, their capacities. उनको क्या करना है? They are not aware of the career options. They are not aware of the opportunities which are available globally. They are not aware कि industry में क्या चल रहा है, job market क्या है, and there is nobody to guide them. At home, yeah, At because home, because all the students come from such a family and a background जहाँ पे they are first generation learners. So there yes, is nobody who can guide them. तो considering all that, हम लोगों ने सार्थक मित्र ऐसे डिजाइन किया that we will not only support them financially, okay, we will give them a timely career support. We will advise them कि उनको क्या career करना है. We will also enhance the skills because if you understand the problem, हमारी दूसरी problem ये है, especially in India, कि हमारे यहाँ पे degrees है लेकिन skill नहीं है, skill so they नहीं. are not employable. तो skills are extremely essential part. तो skill भी हमने incorporate किया उसमें. Third thing is basically hand holding of the child, कि कोई भी उसको गाइड चाहिए, सपोर्ट चाहिए, अ फ्रेंड फिलोसोफर गाइड. एंड वी डिसाइडेड कि हम लोग उनको मेंटोर भी करेंगे. सो सार्थक मैत्र, आई मीन नाम में ही हम लोगों ने मैत्र डाला है. तो आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट Yes, दैट. sure. मित्र का मतलब है फ्रेंड. Friend. मराठी में मित्र बोलते हैं उसको. बट दिस इज समथिंग मोर देन अ फ्रेंड. ये फ्रेंड फिलोसोफर गाइड है, ये काउंसलर भी है, ये गुरु भी है. इस a mentor is somebody who can actually understands you, who will never give up on you, who will walk with you in your time of struggle, who will ensure that आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. You know, a person whom you can confide all your troubles, you can talk to, you can tell them your problems, Troubles. and the Confide in person, them. yes. Yes. So this is also required, and person can be a role model as well. तो मित्र का मतलब है somebody who will always walk with you till you succeed, till you achieve your dreams. साथ चलने वाला. Yes. Okay.
दैट्स So ग्रेट। this is साथी how मतलब you. जिस तो साथी ये बोलते हैं। ऑलमोस्ट 5 से 7 साल का प्रोग्राम है, इट्स नॉट ओनली ऐसा नहीं है कि एक साल में हम लोग हेल्प करते हैं, इट्स अ 5 years प्रोग्राम। So what age group do you cater to? 5-year programs means you take up students from? एसएससी पास आउट्स, सो Okay. एसएससी पासिंग आउट से प्रोग्राम शुरू होता है, एंड देन वी रीच अप टू ग्रेजुएशन, समटाइम्स पोस्ट Post ग्रेजुएशन, graduation यस। also. क्योंकि So प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 5 साल 7 साल लगते हैं। लगते हैं तो या वो 5-7 साल तक का हैंड होल्डिंग होता है। होता है, ओके। टिल द पर्सन बिकम्स एम्प्लॉयबल। ओके। So when you started, how many students were you supporting, and currently how many students do you support? How has Sarthak grown over the years? Oh wow. We started with only 15 students, because पहले हम लोगों ने पूना में 5 schools को अप्रोच किया, and we decided कि पहले हम लोग छोटे स्केल में शुरू करते हैं। तो 15 स्टूडेंट्स के साथ शुरू किया, but we were very lucky and fortunate that we able to get the help and support from people. People like that idea, and I'm very happy to share with you that we have more than 700 students now across Maharashtra. पहले सिर्फ पूना के बच्चे थे, हाँ, अभी अभी अक्रॉस अक्रॉस महाराष्ट्र महाराष्ट्र से आपके बच्चे बच्चे आ हैं। रहे हैं, एंड एवरी डे नंबर इज इंक्रीजिंग। So accordingly, the number of counselors and mentors have also increased, or how does it work? ओके, सो बेसिकली देर आर 3 कैटेगरीज। एक तो है जो काउंसलर्स है, विच आर अपॉइंटेड डायरेक्टली टू वर्क विथ आवर स्टूडेंट्स, जो ग्रुप काउंसलर्स है, तो उनकी ग्रुप काउंसलिंग होती है। करियर काउंसलर्स है जो उनको करियर एडवाइस देते हैं एट द टाइम ऑफ द एंट्री एंड एट अ रेगुलर इंटरवल, मतलब 10th के पास लगता है, 12th के बाद लगता है, ग्रेजुएशन तो में ये लगता है। इंडिविजुअल काउंसलिंग ये होती है। इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है। देर आर साइकोलॉजिकल काउंसलर्स, दोज हु आर वर्किंग विद द स्टूडेंट्स इफ दे आर हैविंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज, बिकॉज these students come from such a background जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस है, जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, एडिक्शंस है, तो उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं। उसके लिए साइकोलॉजिकल काउंसलर्स है। देन वी हैव अ टीम ऑफ ट्रेनर्स। सो ट्रेनर्स है जो उनके साथ 5 साल में स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं, Okay. एंड वी हैव काउंसलर्स हु आर ग्रुप काउंसलर्स। Hmm. सो हर एक प्रोजेक्ट के लिए अराउंड 10 बच्चों के लिए एक काउंसलर होता है जो उनके बच्चों के साथ काउंसलिंग करता है whenever there is a need, and timely interventions होता है। Now apart from that we feel that one to one mentoring is also required। तो mentors ऐसे होते हैं, they are all dedicated people, they are very educated, and they're experienced people, come from industry. Some of them are doctors, some are lawyers, some are ex-army men, some are, Professionals. they're professionals. So they are very dedicated people who are actually interested in sharing their knowledge with somebody. They're interested in investing some time with the mentee. तो ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ अराउंड, वी हैव अ टीम ऑफ मेंटर्स एज वेल। तो अराउंड 25 हमारे मेंटर्स है। 25 mentors हैं। या वी हैव समबडी अराउंड 10-15 ट्रेनर्स है, 15 काउंसलर्स है, और अपार्ट फ्रॉम दैट द एंटायर कोऑर्डिनेशन के लिए कोऑर्डिनेटर टीम है। Okay, तो सो अभी इट्स अ टीम एफर्ट it's टोटली। it's totally team effort. And how do you differentiate students who need one-on-one mentorship and who are okay only for group mentorship? So while we take their interviews and while we interact with the students, हमें पता चलता है कि किसको ज़्यादा mentoring की ज़रूरत है। Some of the students who are pursuing professional courses, IT में है, या chartered accountancy कर रहे हैं, या medical में है, so we usually connect them with the related फील्ड के Professional in that प्रोफेशनल के field, साथ उनको कनेक्ट करते हैं। जिसका expertise उस फॉर area में एग्जाम्पल है, इफ somebody is pursuing CA, तो उनको CA के साथ सीए connect के कर, साथ कनेक्ट करते हैं। इफ somebody is going for the medical और पैरामेडिकल, तो तो किसी उनको डॉक्टर के मेडिकल साथ। फील्ड से कनेक्ट करते हैं। द पर्पस बिहाइंड दैट इज बेसिकली मेंटोर कैन गाइड देम एंड दे कैन एक्चुअली टेक देम थ्रू के क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसे हैंडल करना है, ये सब चीजों के लिए। ऑल्सो देर आर फिजिकली हैंडीकैप पीपल ऑल्सो, सो उनके लिए भी करते हैं, One-on-one mentorship वन ऑन करते हैं। मेन करते हैं। फिर दोज हु कम फ्रॉम अ वेरी ट्रबल चाइल्डहुड, या तो ऑर्फन्स है, उनके लिए भी जरूरी होता है कि उनको वन टू वन One-on-one मेंटोर होना mentorship चाहिए। होना तो चाहिए। दैट्स हाउ वी तो डिसाइड। कोई जिनके पास वो गाइडेंस के लिए जा सके, जिनके साथ कन्फाइड कर सके, ट्रू, मतलब वन ऑन वन ट्रू। मेंटोर इज फिर रिक्वायर्ड। भी आप मुझे कहेंगे तो कंपेयर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू मेंटोर, रेशो कम है, मुझे पता है, एंड वी आर इंक्रीजिंग, वी वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मेंटोर्स मेंटोर्स। फॉर दिस। और मुझे हमेशा लगता है कि मुझे मेंटोर्स का नेटवर्क चाहिए, मुझे मेंटोर्स की हेल्प चाहिए।
मेरी हमेशा यही अपील रहती है कि मोर देन फाइनेंशियल सपोर्ट, एक्चुअली अगर आप किसी भी बच्चे को आप सपोर्ट देंगे, मेंटोर होंगे, तो यू कैन एक्चुअली हैंड होल्ड दैट पर्सन एंड यू कैन टेक देम अहेड. Take them ahead, and it's a Yeah, very fulfilling experience, it's a I'm very sure. fulfilling and it's very I'm sure. yes. And uh, what is the selection procedure for the students? Is there any eligibility criteria, selection process, आपका procedure? What is the selection process? Absolutely. Selection process में first and foremost is they have to be from the economically weaker section. ये पहली requirement है. They Which have to is be from what is उनका considered? annual income 1.5 lakh से कम होना चाहिए. Okay. That is the first requirement. That they have to be from a very needy and economically weaker section. दूसरी चीज ऐसी है कि उस स्टूडेंट में हुनर होना चाहिए. हुनर का मतलब है नॉट ओनली परसेंटेज, ओके, Talent. बट अ टैलेंट, एंड ही शुड हैव अ पैशन टू डू समथिंग. जज्बा कोई होना भी चाहिए. बच्चा 90% भी हो, अगर उसको 90% भी मार्क मिला है तो भी अगर उसमें पैशन नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता. लेकिन अगर उसमें कुछ करने की जिद है, अगर वो बच्चा चाहता है कि मुझे मेरी ये ड्रीम्स है और आई वांट टू फुलफिल इट, एंड इफ इज रेडी और शी इज रेडी टू डू, ये सारी मेहनत करने के लिए तैयार है, देन दैट इज हाउ वी सिलेक्ट. तो आपका प्रोसेस कैसे चलता है? आप इंटरव्यू करते हैं, होम विजिट्स करते हैं, क्या करते Yeah. हैं? We basically, the first step is basically we check their documentation. आपके पास एप्लीकेशन आती है? एप्लीकेशंस हमारे यहाँ पे पहले तो स्कूल्स में हम लोग फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करते थे फॉर्म्स, बट राइट नाउ आफ्टर 7 years वी आर गेटिंग सो मेनी फॉर्म्स एवरी नाउ एंड देन People are बिकॉज hearing about your work या and सो approaching you directly. एब्सोल्युटली. तो फॉर्म्स आते हैं, उनको सेग्रीगेट करने के बाद पहले हम देखते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटीज क्या है. उसके बाद स्टूडेंट्स के मार्क्स देखते हैं कि नॉट ओनली फॉर द एसएससी मार्क्स, वी आल्सो जज के 8 9 10 के मार्क्स क्या है, जस्ट टू फाइंड आउट के वेदर देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन द मार्क्स और नॉट. थर्ड इज वी विल इंटरव्यू स्टूडेंट एंड पेरेंट्स बोथ. पेरेंट्स का इंटरव्यू इसके लिए है कि उनको इंक्लिनेशन है कि नहीं, whether बच्चों को they are पढ़ाने really के लिए, interested in teaching the student or not. बच्चों को पढ़ाना है बच्चा ये को पढ़ाना है या नहीं, ये बहुत मैटर करता है, स्पेशली विद द गर्ल चाइल्ड. Yes. क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हाँ हेल्प मिल रही है उसको सिखाते हैं, बट एक्चुअली अनलेस एंड अनटिल यू आर रियली इंक्लाइन, रियली इंटरेस्टेड, वो बच्चा आगे नहीं जा सकता. सही. फिर होम विजिट होती है, तो जो भी फैक्ट्स फॉर्म पे लिखी होती है, उनकी इनकम क्या है, हम लोग खुद जाके देखते हैं, असेस करते हो कि सही है या because नहीं. it is required. Unless and until you visit, make a visit their home, कि आपको पता नहीं चलता है कि ये कौन से बैकग्राउंड से है, कौन से स्लम से है, कहाँ से है, सिचुएशन क्या है, घर में कौन कौन है, फैमिली मेंबर्स कौन है, तो ये सब पता करना बहुत और जरूरी उसका है. माइंडसेट भी किस या वजह से इन्फ्लुएंस होते एब्सोल्युटली, हैं. हाउ इज इट इन्फ्लुएंस, उसका अपब्रिंगिंग कैसा है. उसके बाद हम लोग सबके एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं. नाउ एप्टीट्यूड टेस्ट जरूरी इसके लिए है कि बच्चों का एक सेट माइंड, मतलब माइंडसेट पूरा फर्म होता है. इवन देयर पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ देम वांट्स टू डू इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, एमपीएससी, सबको गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है, बट उनका एप्टीट्यूड अलग है, देयर ओरिएंटेशन इज डिफरेंट. तो हमें ये बताना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज बच्चे एजुकेशन बीच में छोड़ देते हैं. हाँ, सही तो है. हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट इसके लिए लेते हैं, सो दैट हम लोग वी कैन टेल देम कि आपके यहाँ पे एप्टीट्यूड क्या है, आपकी कैपेसिटीज क्या है, आपका ओरिएंटेशन क्या है, आपका पैशन क्या है, और आप क्या कर सकते हो. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सेट, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एब्सोल्युटली वी बेसिकली. मेक देम अवेयर अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और उनको बताते हैं कि आप अच्छा क्या कर सकते हो, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर हिम. तो ये करने के लिए हमें एप्टीट्यूड टेस्टिंग करना पड़ता है. उसके बाद हम हर एक बच्चे का करियर काउंसलिंग करते हैं, सिलेक्ट हो या ना हो, हम हर एक बच्चे का करियर जो काउंसलिंग आपके करते हैं. पास अप्रोच करते हैं यस, सबकी सबका काउंसलिंग होती है. करियर काउंसलिंग होता है. वी एडवाइज देम अबाउट क्या सिलेक्ट करना है, क्या नहीं करना है. तो ये सब होने के बाद ऑनबोर्डिंग होता है बच्चों का, एंड ऑनबोर्डिंग होने के बाद 5 साल तक उन हमारे साथ वो रहता आपके है. साथ रहते हैं. सो 5 साल में भी वी आर नॉट, ये ऑनबोर्डिंग होने के बाद 5 साल में इट्स लाइक अ ग्रूमिंग प्रोसेस. तो हम लोग उनको भी टेक देम आउट फॉर इंडस्ट्री विजिट्स, वी टेक देम आउट फॉर पिकनिक्स, ट्रिप्स, एक्सपोजर विजिट्स लेके जाते हैं. वी डिस्कस, कुछ ग्रुप डिस्कशंस होती है, वी रोल प्लेस. रोल प्लेज होते हैं, केस स्टडीज होते हैं. वी ऑल्सो मेक देम अवेयर अबाउट द वेरियस स्किल्स. जैसे कि हमने पहले कहा कि स्किलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम लोगों ने क्या किया है,
4 डिफरेंट टाइप्स में हमारे स्किल्स होते हैं। सो WHO ने लिखा है कि 24 एसेंशियल स्किल्स होना जरूरी है हर एक बच्चे में। लाइक दैट वी हैव डिवाइडेड इनटू, पहले स्किल्स है स्टडी स्किल्स, Mhm. एग्जाम स्किल्स, स्टडी स्किल्स, जहाँ पे उन बच्चों को दैट हेल्प्स देम फॉर द स्टडी, वो जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। गोल सेटिंग जरूरी है, उनको स्ट्रेंथ वीकनेसेस, हम लोग उनका स्वॉट एनालिसिस करवाते हैं, गोल सेट करते हैं, स्मार्ट गोल सेटिंग क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, ये सब सेट करते हैं। दूसरा जो सेट है स्किल्स का, दैट इज समथिंग विच इज इमोशनल स्किल्स, बिकॉज टीन्स में है ये बच्चे, तो उनको इमोशनल स्किल्स की और उनकी बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, बहुत सारे बच्चे एडिक्शंस के लिए प्रो हो जाते हैं, उसके लिए एडिक्शन के बारे में अवेयर कर देते हैं। सेक्सुअलिटी डेवलपमेंट इज इसेंशियल। तो ये सारे स्किलिंग जो है Good वो touch, bad touch. एब्सोल्युटली, गुड टच, बैड टच, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव, अट्रैक्शन, पैशन, ये Infatuation. बताना पड़ता है। सोशल मीडिया एडिक्शन अगर है तो कैसे करना है, हैंडल करना है सोशल मीडिया आपको, ये सब बताना पड़ता है। सो दैट कम्स अंडर इमोशनल स्किल। एंगर Skilling. मैनेजमेंट इज अनदर इशू इन यूथ, Mhm. तो वो उसके लिए हम लोग Which इम्पोर्टेंस is देते हैं। very this thing in the youth actually. Yes. फिर तीसरी जो स्किल्स है वो डे टू डे लाइफ में उनकी हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, विच इज मैंडेटरी, विच इज, दूसरी है डिसीजन मेकिंग, Mhm. प्रॉब्लम सॉल्विंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ये सारी स्किल्स है उनको वो डे टू डे मैनेज करने में इंपॉर्टेंट होती है। एंड द फोर्थ सेट इज प्रोफेशनल स्किल्स, लाइक कम्युनिकेशन स्किल इज रिक्वायर्ड, प्रेजेंटेशन स्किल इज रिक्वायर्ड, इंटरव्यू में कैसे अपियर होना है, सीवी कैसे करना है, Resume हाउ कैसे डू आई करना हाउ है? डू आई प्रिपेयर माई लिंक्डइन प्रोफाइल, हाउ डू आई प्रोफाइल माई फेसबुक प्रोफाइल, मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूँ, मैं इंडस्ट्री में प्रपोजल्स कैसे डाल सकता हूँ, एन नंबर ऑफ थिंग। इंटरव्यू के लिए जाने सो का क्या ये प्रोटोकॉल सारे है स्किल्स हम एग्जैक्टली? लोग ये 5 साल के जर्नी में उनको सिखाते हैं। वी मेक देम अवेयर ऑफ दिस स्किल्स, बिकॉज हम चाहते हैं कि जब भी बच्चा या बच्ची बाहर जाए, हमारे स्टूडेंट, they should be employable, because the ultimate objective is to make them employable, make them stand on their feet, and secondly they should earn a dignified income, जो उनको एजुकेशन से ही मिल सकती पॉसिबल है। Exactly. यस, The school dropout rates for girls would be much higher than that of boys Yeah. due to certain socioeconomic circumstances that Yes. prevail in our country. Yes. So, does Sarthak Baitra have any specific programs for girls so that they have access to higher education? यस, एब्सोल्युटली। तबस्सुम जी, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे आफ्टर 18, जब तक 11th-12th होता है तब तक बच्ची पढ़ती है, बट इमीडिएटली वंस शी टर्न्स 18, बहुत सारे रिमोट लोकेशंस में, विलेजेस, Rural areas. रूरल एरियाज में, देयर इज अ ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन पेरेंट्स एज वेल कि बच्ची बड़ी To हो get रही है, married. उनकी शादी करवा दो। Mhm. सो बहुत सारी लड़कियां, इन स्पाइट ऑफ देयर capacities, parents doesn't allow them to go out of the comfort zone, they don't allow them to go out to cities, Bombay या Pune में, they don't allow to travel for the education, तो उनको कन्विंस करना बहुत जरूरी होता है, and that's why the ratio in Sarthak Maitra also, we have more girl students than boys. Now, how many are girls and how many are boys? Around more than 400 are girl students. Okay, out And of we have 700. 4 different programs for girls. Okay. It's called Project Vidya, Project Laksha, Swayam, and Unnati. So all these programs are designed for girls, and we insist upon, getting some or other skills for the girls. मतलब कि graduation है, there are certain girls who will complete their graduation. Definitely, they will even complete the professional courses also. They will even complete the post graduation. But बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जिनको possibility of them leaving the education is also more, maybe because of, Whatever. घर, Yes. हाँ, background के घर वजह के से, circumstances तो की वजह से. we make sure that they have some skill, So that they are able so to that they will be able to sustain. जहाँ sustain पे भी themselves. जाएंगे वो काम करेंगे, उनके हाथ में काम होगा, and definitely they would be able to survive, और अपना income dignity से कमाएंगे वो. So that is the objective. And what type of mentoring projects does Sarthak Mitra undertake? We have currently around 8 projects, different projects. Of course, the names are, structure is similar. Structure is same Structure for, is same like for all. Sarthak Mitra, all of the So projects it all have similar involves structure. counseling, guiding, Absolutely, mentoring, yes. and All these 5 emotional support, elements are financial support.
emotional support, financial support, mentoring, counseling, training, skilling. It's common for everybody. But geographical areas and age groups, because of that age group, we have kept us different names for different projects. Also, whenever we get funding from corporate, or then we create a different group or a different project for them, Okay. Which bears the name of the which corporate. bears the name of the corporate, So that which the comes under project, that banner. so that that project is identified by the Absolutely. corporate is identified by Uh, that project. Yeah, basically. correct. Because this kind of visibility and the transparency is must, which I feel, because otherwise corporates get attached to that project, Yeah. and sometimes we also promote involvement of the employees. Employee engagement भी होना चाहिए. हम लोग, we look forward to that kind of a employee engagement, because even our students look forward to that. We want more and more employees to get engaged with as a mentors to the students. So they accompany you on the home visits and We make them, we invite them for the home visits, we invite them for the interviews, so that they should also know कि वो कौन से background से बच्चे आ रहे हैं, किस बच- तरह सिलेक्शन हो रहा कैसे है. selection हो रहा है. So make it, we want make to be, invite them for to be part of that project. हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोजेक्ट में आए, and they should understand How it के works. process कैसी है. How it Yes. works. Yeah. Good morning, ma'am. Good morning, What's your name? Mrunal Rajahans. And you are associated with Sarthak since when? Since 10 years, I'm with Sarthak. I'm working as one of the directors of Sarthak Welfare Foundation. Okay. Our Sarthak was formed in 2017, right? Yeah. So this But- is the 7th or 8th year. 8th year. And you've been associated before inception Yeah. with Sarthak. Yeah. And how have you seen Sarthak grow over the years? Basically, Sarthak is working in different verticals. Like Sarthak is working in education, women empowerment, health, skill development, and mentoring support. So उसमें education जो है, so in education, academic as well as non-academics, both fields Sarthak is working. So in mentoring support also, we are doing mentoring of actually Sarthak जब शुरू हुआ तब we were having only 7 to 8 students with Sarthak, but now we are having 700 students with Sarthak, and we are giving them scholarship and mentoring support. Scholarship and mentoring support. So apart from financial support, you also lend mentoring support. Correct. Mentoring And support. what about career counseling? Yeah, career counseling is a very important milestone of anybody's journey. Basically, we select the students after 10th standard. 10th के बाद उनको पता नहीं होता कि हमें आगे क्या करना है. हाँ, कौन से तो फील्ड में कौन जाना से है? फील्ड में जाना है, क्या सिलेक्ट करना है, क्योंकि मेनी टाइम्स क्या होता है कि इफ यू गेट गुड मार्क्स देन यू कैन सिलेक्ट साइंस, देन कॉमर्स एंड देन आर्ट्स, बिकॉज दिस इज वेरी कन्वेंशनल मेथड ऑफ सिलेक्टिंग करियर, बट वी डोंट डू लाइक दैट. We select the students after 10th standard, then we do their aptitude test, and on the basis of aptitude test result, we give them certain career paths. Okay, you give them a career counseling as to what their aptitudes are and what they should be doing. Mhm. And what type of students do you cater to? Financially underprivileged students, Okay. mainly from areas, in slum areas around Pune, and Pune, Satara, Ahmednagar. From different districts, we select students. So basically, they are students who have no family guidance at all. Anybody, family member who can guide them on careers, on further No one is there. education, No on one higher is there. education. Because many of our students are orphan, single parent, and if at all there is single parent, that mother or father is working whole the day for their bread and butter. They have no time for They the have child. no time for a child. That's true. It is more important to put food on the table than to Yeah, book that a is more. career counseling That for is the more child. important for them. That is. We now speak to the counselors associated with Sarthak Welfare Foundation. हेलो Good evening, ma'am. गुड Hello. आपका नाम? मेरा नाम अनघा हणमसागर. मैडम आपका नाम? I'm Meghali Raji.
Okay. How long have you been associated with Sarthak? I have been associated from last 7-8 years 7-8 years. when Sarthak was established. From that time, And ma'am, how long have you been associated with Sarthak? Same, 7 to 7 8 to 8 years. years. And as counselors, what is your responsibility, your role in Sarthak? um, actually, both of us, we are mentors and counselors and career counselors. As a counselor, if it is related with some specific problem, and then we can solve it. But as a mentor, it's a long process of handholding for at least 5 years. And when kids, they come to us, they are barely around 15 to 16 years old. And funniest part is when we ask questions to them, they say ha, na, only 2 words. Yes Not and no. not even a full sentence. So we jokingly tell them, answer in one sentence. But they are so raw, they are not exposed to anything. But after 2-3 years, ducklings into swan, beautiful swan. And we have been seeing this from last 7 years. And it must be very fulfilling. वेरी फुलफिलिंग, एनरिचिंग और हम सबको बहुत समृद्ध करने वाला अनुभव है. इट गिव्स अस होप एंड इवन फॉर द किड्स, दे बिलीव इन गुडनेस ऑफ पीपल, goodness of society. And yes, I don't have certain things in my life, but some people are there To some help me. to help me out with clean heart and with purest of the purest intention. Intentions. That's it. And what is the selection procedure for these students? Where do they come from? What is the eligibility criteria? Actually, eligibility criteria is not fixed. Marks is always there. First, for the first level, first elimination. But What is the benchmark for marks? minimum 80-85%. And Minimum. above. And Yeah, above. and above. Yeah. But it is not fixed. Let me tell you one incident which is close to our heart, her, mine, and even sir's. There is one incident. We always give some time slot to students, and we call them again and again. Please do come, please do come. Then they don't have phone numbers. Then we call their aunts, uncles, aji, azoba, and all. But that chap, he didn't turn up only. And when we were about to leave, he just turned up. फिर हमने पूछा, क्या हुआ भाई, इतना टाइम क्यों लगा? And this incident is very close to our heart. So he said, नहीं, लेट हो गया मैम सर. पूछा क्यों? बोले कि हमारे खेत में पुदीना आता है ना, अगर वो आज सेल करना था और अगर वो टाइम पे सेल नहीं किया ना तो वो सूख जाता है, फिर लेने वाला कोई होता नहीं है, कितने भी दाम कम करो कोई लेता नहीं है. So I went there, sold my mint, and then I came to Then I know. have come. That is why I have got lit. So it's, It I was mean, very heart touching. I mean, it is heart touching and still it is like goosebumps. मतलब जब भी हम सारे ही लोग, not only me और her और sir, पर जब हम सभी लोग जब पुदीना देखते हैं तो हर बार मैं ये वो सोचती हूँ बच्चे के बारे में कि सोचते हैं। वो बच्चे के बारे में नहीं, इसके पीछे क्या क्या लगा होगा. और हम जब कुछ भी बाय करते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो मोस्टली ऐसे ही छोटे छोटे इससे आते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा भी कुछ दाग हो या ये हो, या तो हम कम प्राइस बोलते हैं या लेते नहीं है, पर उसके पीछे क्या क्या होता होगा. कितनी मेहनत होती होगी, कितना एफर्ट जाता होगा. एक बच्चा उसके लिए क्या करता होगा. सो आई मीन, ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज है. आपका तो हमारा प्रोसीजर क्या है, मतलब कैसे स्टार्ट होता है और कैसे खत्म होता है? हाँ, पहले तो हमारे पास फॉर्म आते हैं, फिर हम पहला स्क्रीनिंग करते हैं एलिजिबिलिटी के हिसाब से कि मार्क्स और फाइनेंशियल बैकग्राउंड. फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है. उसके बाद हम इंटरव्यूज के लिए कॉल करते हैं. इंटरव्यूज में बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी बुलाते हैं. पेरेंट्स आते हैं, उनका इंटरव्यू होता है, बच्चों का इंटरव्यू होता है और उसके बाद फिर एक स्क्रीनिंग होता है. उसमें कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं. वो शॉर्टलिस्ट किए हुए बच्चों की होम विजिट्स होती है. जो बोला है वही कंडीशन है ना घर में. हाँ, जो और सही बोल रहे हैं या गलत हाँ, बोल रहे हैं. हाँ. और दूसरा वाला कि वो कैसे रह रहे हैं,
कैसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ये भी हमको पता चलता है। कि बच्चे का अगर मेंटरशिप करना है तो वो जरूरी होता है कि वो किस टाइप के बैकग्राउंड से आ रहा है, यस यस उसकी यस अपब्रिंगिंग, घर का माहौल कैसा है, ये यस जानना जरूरी होता है। यस। Okay. और उसके बाद हम और एक स्क्रीनिंग करते हैं। हम्म। उसके बाद हम जो 10वीं में बच्चे हैं उनको आपके करियर क्या करना है उसके लिए वो कुछ क्लैरिटी नहीं होती है, और माँ बाप भी ऐसे पढ़े गाइडेंस लिखे, नहीं कर ज्यादा पढ़े सकते लिखे नहीं उनको। होते हाँ, हैं। तो हम उनके शॉर्टलिस्ट करके उनका टेस्ट लेते हैं, करियर टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। और उसके बाद वो करियर काउंसलर उनका करियर काउंसलिंग करता है। और इस राउंड में भी वो शॉर्टलिस्ट हो गए तो उनका सिलेक्शन हो गया हमारे सार्थक के फैमिली में। फिर सार्थक के साथ एक फैमिली का भाग बन जाते हैं। या और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम जो भी हमारे पार्टनर है जो हमें फंडिंग करते हैं, वो उनका जो प्रोजेक्ट है उसमें हम अलॉट कर देते हैं बच्चों को, और वो उस प्रोजेक्ट का मतलब हिस्सा बन ओवरऑल जाते हैं। ओवरऑल हैंड होल्डिंग के लिए Yes. तो हैंड होल्डिंग में फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा भी और क्या क्या होता है? हाँ, हमारा हर एक प्रोजेक्ट में मिनिमम 4 काउंसलर रहते हैं, और वो काउंसलर उनका ध्यान रखते हैं, उनका एकेडमिक का ध्यान रखते हैं, उनका साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है तो उन्हें काउंसिल किया जाता है, करियर में कुछ प्रॉब्लम है तो करियर फैमिली काउंसलिंग की भी किया जाता है। काउंसलिंग होती है? हाँ, ज़रूर होती है, पेरेंट काउंसलिंग होती है। कुछ बच्चे बोल देते हैं हमें, जो घर में मेंटर प्रॉब्लम होते है? हैं तो हमारे घर में ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है। अगर हमको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का भी काउंसलिंग करना जरूरी ज़रूरी है। है, तो हम ज़रूर उनसे बात करते हैं, बुलाते हैं उनको, उनका भी काउंसलिंग कर देते हैं। अच्छा, और and any success stories that you would want our viewers to know? Some really good ones, initial बहुत सारी है। inspiring कोई है, तीन चार बहुत सारी बताइए। है, बहुत सारी है, एंड ऑल ऑफ देम आर इंस्पायरिंग बिकॉज़ एक का नाम लूँगी तो दूसरे पे यू नो माय फर्स्ट मेंटी संकेत। संकेत इज़ फ्रॉम उस्मानाबाद, और संकेत अराउंड 8-10 साल पहले आया तो ही आई स्टार्टेड माय मेंटरिंग कॉन्सेप्ट विद संकेत। एंड संकेत वाज़ अ कॉमर्स स्टूडेंट। पुणे आने के बाद उसने बीकॉम किया। He was interested in law, so he completed his LLB. He did his LLM. He passed NET set exam in first attempt. He also passed judiciary exams, and right now he is very happily working as a professor of law in Nanded No, that's University. great. Another of my student who comes from a very needy background, from the Lakshminagar slums, Santosh, who completed his cyber security program. He is working with a cyber security firm as a manager. What Another of my is student. the family background? What does his parents do? नहीं, father, of course, he was single, handled by single parent, Okay, and the mother was working as a housemaid, housemaid. and Okay. he was staying with in Lakshminagar slums. Slums. दूसरी एक लड़की अंकिता, similar background. All of them are from such kind of a backgrounds, and she is working as a IT professional. She is working in a as a software engineer in Mhm. Mumbai. uh, Aditi, a very unique child. Aditi basically उनके जो फादर थे वो रिक्शा चलाते हैं, और शी इज द ओनली गर्ल हु सेड कि मुझे मैथ्स में ही ग्रेजुएशन करना है। Oh, सो इट्स वेरी यूनिक। बहुत सारी very बच्चियां, few वेरी people. फ्यू पीपल। तो उसने मैथ्स में बीएससी किया, मैथ्स में एमएससी भी किया, एंड शी इज नाउ वर्किंग एज अ लेक्चरर। वो बच्चों को 10th 12th एंड अबाउ मैथ्स पढ़ाती है। Okay, now that is very good. But how was when they came for an interview, how was the interaction with the parents? Were the parents equally passionate about educating their children, or since they're coming from that type of See, a background? parents will always, they will always want their children to do something great in their life. कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि हम उनके बच्चे कुछ अलग करें। They would definitely like their students, child to do something great. लेकिन they are not aware. उनके they are not aware कि बाहर क्या चल रहा है, opportunities क्या है। उनको इतना ही लगता है कि हमारे बच्चे कुछ अलग करें, कुछ ग्रेट करें और उनसे अलग करें, and they should be qualified. In this conversation, we talked to a mentor and mentee associated with Sarthak Welfare Foundation. Good afternoon. Good afternoon.
Ma'am, your name? Manjiri? You are a mentor associated with Sarthak. Yes, Since how long you've been associated with Sarthak? 7 years. 7 years. Yes. And how many mentees you've had in this period? Near about 100. Okay. And she's one of your mentees? Yes, she What is is- one of my What mentees. is your name? My name is Pranali Malpute. Okay. And what are you studying? I'm studying agriculture business management. Okay. And ma'am has been mentoring you for how many years now? 3 and 4th running. Okay. Who all are there in your family? We have 7 members, considering my father, my mother, my elder sister, younger brothers, and my cousins, 2 cousins. 2 cousins. And आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा दूध डेयरी है पुणे में, वहाँ पे जॉब करते हैं। और मम्मी? मम्मी भी छोटे से एनजीओ में काम करती है, छोटे से एनजीओ में काम करते हैं। और बहन बड़ी है, छोटी है? बड़ी है। अच्छा, वो क्या करती है? वो कंप्यूटर इंजीनियर है, अभी एसेंचर को जॉइन हुई है। अच्छा, उनको भी सार्थक की तरफ से हेल्प मिली थी? यस। अच्छा, इसलिए आपको सार्थक के बारे में पता चला। हाँ, मैं जब छोटी थी वो मुझे संग लेके आती थी सार्थक के सेशन में, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी चाहिए जी, चाहिए। और इतना सारा गाइडेंस। मैडम की तरफ से आपको जो मेंटरशिप मिली है, उससे आपको किस तरह हेल्प हुआ है? मतलब मैडम की तरफ से जो मुझे मेंटरशिप मिल रही है, उससे मेरे जो कन्फ्यूजन होते हैं, वो एकेडमिक्स के हो या फिर मेरे पर्सनल प्रॉब्लम हो और इमोशनली सपोर्ट हो, वो सभी मुझे मिलता है। सब मिलता एक है मैडम। क्लियर पाथ सक्सेस की तरफ जाने का तो वो जहाँ मैडम भी दिखाते आपको हैं। ऐसा लगे कि 2 रास्ते हैं, मुझे नहीं पता कौन-सा हाँ, जाना है, तो मैडम के पास आ जाते हैं गाइडेंस के यस। लिए और मैडम से गाइडेंस मिलती है। हो। Okay. Madam, how do you feel about her progress since you've been her mentor? She is, first of all, she is very sincere, and first of all, she studies everything and then asks me. So when I ask her questions, she has some answers, but though they are not correct, but she has studied all those things, and that helps us, Okay, both she of us. analyzes what is the Yes, problem and then comes to you to yes, for a for the solution. solution. Yes. And how has she progressed academically and otherwise? Academically, she is good. In the first semester, a little bit low because she has to adjust everything. But now she has cope up everything, and she is living at Junnar. And also she is good at plays. She has sports, and she has done state level and national level sports. What She sports has do you play? My main game is athletics, but side by side I playing kho-kho, volleyball, and kabaddi. That's good. And what are your plans for the future? What do you want to do? I want to do internship program at Denmark. Because Denmark is based, Denmark have an opportunity for agriculture student. There is various field like dairy, poultry, piggery, and nurseries also. Okay. So I want to work there. Work as an intern in Denmark. And also I want to work permit from them and settle down in Denmark. And how has her confidence level improved since you've started her mentorship? नहीं, जब से वो मेंटरिंग में आई है तो कॉन्फिडेंस पहले तो सबका ही लो होता है, लेकिन ग्रेजुअली जब से वो मतलब स्पोर्ट्स में गई है, कॉलेज प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करती है, तो वहां से बहुत सारा कॉन्फिडेंस उसका बढ़ गया है और अभी वो डिसीजन कॉन्फिडेंटली लेती है। Okay. और आपसे काफी कुछ सीखी है। हाँ, आपने भी उनसे काफी कुछ सीखा होगा। यस। मतलब इनकी जो It's a two-way process, यस, right? इनकी जो परिस्थिति होती है ना, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, वो दोनों में भी जब हम देखते हैं उनकी तरफ, तो वहां से हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है कि अरे ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, किस परिस्थिति से जा रहे हैं, लेकिन उनका गोल जो होता है ना, वो गोल बहुत अच्छी तरह से सेट होता है, जिसकी वजह से वो काम करते हैं और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमको भी हमेशा गोल रखना चाहिए लाइफ में और क्लैरिटी रखनी यस, चाहिए। और वहां तक पहुंचने के लिए जितनी भी हम लोगों को कोशिश करनी है वो करनी चाहिए ताकि हम सफल हो सके। थैंक यू वेरी मच मैम थैंक टॉकिंग टू यू, अस। Thank you. बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। We now speak to a mentee of Sarthak Welfare Foundation who's visually impaired, and we'll ask her how Sarthak has supported her in achieving her dreams.
Gitanjali, Yes, आप Sarthak, for how many years have been associated with Sarthak? almost 3 to 4 years completed. 3 to 4 years completed. Yes. And how has Sarthak supported you? What did you want to do and how Sarthak has guided you and helped you? यस, मेरे एजुकेशन में मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करता है और करियर में भी, काउंसलिंग में भी मुझे बहुत सपोर्ट है सार्थक का। तो आप और क्या पढ़ रहे हैं? और मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ बीएमसीसी कॉलेज में। ओके। और आप अपना बीएमसीसी कॉलेज में स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल कोर्स है? आप रेगुलर क्लास में अटेंड करते हो? रेगुलर क्लास में अटेंड करती हूँ। तो फिर आप कैसे कोप करते हो नॉर्मल अपने स्टूडेंट्स के साथ में? मैंने 8 to 10 स्टैंडर्ड महिला आश्रम हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। हम्म, वो उधर नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाई की थी, इसलिए मुझे आफ्टर 10th के बाद भी मुझे मतलब नॉर्मल डिफिकल्ट क्लासरूम में डिफिकल्टी नहीं नहीं हुई? आई। मतलब रीडिंग करने के लिए वो बोर्ड में लिखता है, वो आती है उसमें दिक्कत, बट फ्रेंड्स हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स कोई आपके लिए पेपर लिखते हैं मतलब? यस, राइटर। राइटर मिलता है हाँ, आपको यस। पेपर लिखने के लिए? और आपके पास ये मशीन में देख रही हूँ, ये क्या चीज है? ये जो डिवाइस है, ये ब्रेल ऑर्बिट रीडर असिस्टिव डिवाइस है। उसमें मैं ये कर सकती हूँ, जो टेक्स्ट में पीडीएफ है उसमें मैं ब्रेल में कन्वर्ट करके इधर रीड कर सकती ब्रेल में। अच्छा, तो ये आपको सार्थक की तरफ से सपोर्ट हुआ है? हाँ, यस, मुझे सार्थक से तरफ से ही सपोर्ट हुआ है और उसका। इससे आपको किस तरह की हेल्प हुई है? बहुत हेल्प हुई है? बहुत हेल्प हुई है। अच्छा, तो आपके पढ़ाई में बहुत सहूलत हुई है इससे? हाँ, यस। ओके। एंड अभी आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी मम्मी, ब्रदर और पापा। ये आपके साथ आए आपकी मम्मी है? हाँ, यस, मेरी मम्मी है। नमस्कार। और पापा क्या करते हैं? मेरे पापा गोल्ड स्मिथ का वर्कर काम करते हैं। कारीगर है? कारागिर है। कारीगर, अच्छा कारीगर है। हाँ। और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउस वाइफ है और वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है कॉलेज के लेने के लिए, आने के लिए। अच्छा, और छोड़ने मैं, आना लेने आना हाँ, मतलब? ये स्पोर्ट्स में मैं ग्राउंड पर जाती हूँ, उस टाइम भी वो मेरे साथ आती है। अच्छा। और घर में और भाई बहन है? हाँ, भाई है। बड़ा है छोटा है? छोटा है। और वो क्या करता है? वो एजुकेशन ले रहा है और पार्ट टाइम वर्क कर रहा है। पार्ट टाइम वर्क कर रहा है? हम्म। तो घर में बेसिकली मम्मी का आपको बहुत सपोर्ट रहा है? हाँ, यस, सभी का सपोर्ट रहा है। सभी का सपोर्ट रहा और मम्मी ने स्पेशली सपोर्ट किया यस, है? मम्मी और भाई भाई ने भी सब बहुत सपोर्ट किया है? बहुत किया है। अच्छा, और आप आगे चलकर क्या करना चाहते हो? आगे चलकर मेरा एम इतना है कि मैं स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहूंगी। स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को? आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? यस, बहुत है। कौन सा स्पोर्ट्स में? मैंने इस पहले जूडो खेला है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और चेस में भी नेशनल प्लेयर हूँ। अभी मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट किया। एथलेटिक्स में मैं रनिंग और लॉन्ग जंप करती हूँ। ओके। और रनिंग में मैं ओलंपिक की प्रिपरेशन करी, एशियन और ओलंपिक की। अरे वाह! अभी ओलंपिक में जाने की एस्पिरेशन रखते हो? हाँ, यस, और मुझे अभी मैं ट्रेनिंग के लिए अनंतपुर में गई थी और मुझे उधर सार्थक का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, गाइडेंस अच्छा रहा। तो हम होप करते हैं कि आप ओलंपिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आओ। यस, हाँ, एंड विश आऊंगी। यू ऑल सक्सेस। और आपकी मम्मी को बहुत बहुत अभिनंदन, आपने बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया है। और बेटा थैंक आपको यू। ऑल सक्सेस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Yes. We now speak to some of the mentees of Sarthak Welfare Foundation. आपका नाम? जी मेरा नाम ओमकार पवार। अच्छा, आप सार्थक से कब से जुड़े हो एज अ मेंटी? मुझे करीब 6-7 ईयर्स हो गए 6-7 years हो गए। जी। तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी सीए परस्यू कर रहा हूँ। सीए परस्यू कर रहे हैं? हाँ, अब जी कौन से साल में हो आप? अभी मेरा फाइनल ही बचा है, अभी इंटर्नशिप चालू है। 2 अच्छा, साल की इंटर्नशिप के बाद फाइनल एग्जाम होगी मेरी। फाइनल एग्जाम होगी। और आप फर्स्ट लेवल 1 लेवल 2 सब क्लियर हो गया सब आपका? क्लियर हो गया अभी फर्स्ट अटेम्प्ट फाइनल में। ईयर है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है? फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यू। आपके घर का क्या बैकग्राउंड है, मतलब घर में अ, कौन कौन है? घर में मैं, मेरी 2 बहनें और मॉम एंड डैड। मॉम एंड डैड। और जी। डैड क्या करते हैं? डैड अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर है।
अच्छा, साइट पे काम साइट करते पे हैं। काम कर और मॉम मॉम हाउस वर्क हाउस हाउस वाइफ हैं, काम नहीं करते हैं। हाउस हेल्प के लिए हाउस हेल्प है, अच्छा, हाँ डोमेस्टिक हेल्प जो बोलते यस हैं, ओके। और भाई बहन क्या करते हैं? एक सिस्टर है, वो अभी फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही है, ओके, और सेकंड सिस्टर अभी 12th में है। 12th में है। जी और उनको भी सार्थक के थ्रू सपोर्ट मिला है? जी उनको भी सार्थक के अच्छा, तो थ्रू आपको सार्थक के थ्रू क्या सपोर्ट किया गया है? बेसिकली फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, वो सब फीस वगैरह सार्थक की तरफ से भी है, और गाइड भी किया है कि करियर में आगे कैसे करने। करियर काउंसलिंग किया जी था आपका? करियर आपको काउंसलिंग सीए में जाना है, उसके लिए हेल्प किया था? उन्होंने हेल्प किया मुझे, मेरा हम्म, इंटरेस्ट किस में है, वो पहले उन्होंने टेस्ट लिया, एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद मुझे बताया कि ये सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे करियर कर सकते हो। तो अभी आप सीए जो कर रहे हो उसमें आपको जी अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत कंफर्टेबल है, सब्जेक्ट जो मालूम था वही सब्जेक्ट आ रहे, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट था इंटरेस्ट वही जास्त कर था, रहे हाँ हो, वही इसीलिए आप कर फटाफट क्लियर भी फटाफट कर रहे क्लियर हो। भी हाँ जी। कॉन्ग्रेचुलेशन। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? मैं फ्यूचर में मेरे खुद का फर्म ओपन करना हो, और सीए फॉर्म खोलना सीए चाहते फर्म हैं? ओपन करना चाहता ओके, हूँ। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और आप खूब कामयाबी पाएं, खूब सफलता पाएं। ठीक है, थैंक गॉड ब्लेस यू। यू। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम प्रतीक्षा अंडिल है। हाँ, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मेरी डिप्लोमा हुआ है एनिमेशन में। ओके, और सार्थक से कब से जुड़े हुए हो? अराउंड 4-5 इयर्स। 4-5 इयर्स। और किस तरह आपको सपोर्ट किया है सार्थक ने? फाइनेंशियली सपोर्ट किया है और मेरे को गाइडेंस किया है। एक्चुअली आई डिडंट नो मुझे क्या करना था करियर में, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे गाइडेंस किया कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या पसंद है। तो आप जो कर रहे हो वो पसंद है आपको? बहुत पसंद है। अच्छा लगता है? हाँ। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या करना चाहते हो आगे? अभी मैं डिग्री के लिए एडमिशन लेने वाली हूँ। और अभी मैं काम भी करने वाली हूँ उसमें, अच्छा, काम एनिमेशन में 3D। एनिमेशन में काम करने वाले हो, कहीं पे आया है, जॉब मिली आपको? इंटर्नशिप इंटर्नशिप में, की इंटर्नशिप है में। मैंने। और इंटर्नशिप की प्लेसमेंट के लिए भी सार्थक हेल्प करते हैं आपको? हाँ। उन्होंने हेल्प किया है? नहीं, अभी ये बाहर से कॉलेज से हुआ था। कॉलेज से हो रहा है? कॉलेज से हम्म। प्लेसमेंट हो रहा है? हम्म। ओके, तो उसमें आप इंटर्नशिप करेंगे हाँ। कॉलेज की तरफ से? ओके, और फ्यूचर में अपना फॉर्म खोलना चाहते हो या काम ही करोगे? फॉर्म फॉर्म खोलना अपना चाहती फॉर्म हूँ। करोगे? सब अपने फॉर्म खोलना चाहते हैं? यस। तो एनिमेशन में आप काम करोगे आप? हाँ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाँ, गॉड ब्लेस यू। बट आपका नाम? मेरा नाम वर्षा रानी पवार। हाँ, आप सार्थक से कब से जुड़े हो? ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हो और क्या पढ़ाई कर रहे हो? फर्स्ट ईयर फिजियोथेरेपी फर्स्ट स्टूडेंट। ईयर फिजियोथेरेपी कोर्स कर रहे हैं। और आपको कैसे पता चला आपको फिजियोथेरेपी में इंटरेस्ट है? मैम पहले तो मुझे पता नहीं था मुझे कॉमर्स लेना है या साइंस। फिर तब मुझे सार्थक से करियर काउंसलिंग मिली, और तब उन्होंने मतलब मुझे साइंस पसंद था, तो उन्होंने बताया साइंस फील्ड लो, तो साइंस में गई। और वहाँ फिर 12th के बाद क्या करना है, तो एक कोर्स के बारे में पता चला कि फिजियोथेरेपी भी होता है मेडिकल फील्ड में, तो मुझे कुछ ना कुछ मेडिकल फील्ड में करना था, तो फिजियोथेरेपी उसको आपको गाइडेंस मिली फिजियोथेरेपी करने यस के लिए? आपको अच्छा लगता है फिजियोथेरेपी में? यस अच्छा लगता है। आपको यही फील्ड पसंद था? हाँ पसंद था। और सार्थक के आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मतलब घर में कौन कौन है? घर में माँ, पिताजी, एक भाई, और मैं और मेरी बहन। अच्छा, और पिताजी मम्मी क्या करते हैं? पिताजी वर्कर है कंस्ट्रक्शन साइट पे, और माँ हाउस हेल्पर है। अच्छा, और आप आगे चलकर फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं? जी तो अपना फिजियोथेरेपी सेंटर खोलेंगे या किसके साथ काम करेंगे? मैम, स्टार्टिंग में तो काम दूसरों के साथ काम सीखना, करके हाँ, सीखना सीखूंगी। में, हाँ। फिर फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई तो क्लिनिक खोलूंगी। अपना क्लिनिक खोलोगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल सक्सेस, थैंक गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आपके 3 बच्चे हैं, आपकी एक और बच्ची है जो अभी 12वीं में पढ़ रही है। ये दोनों बच्चे अब आगे बढ़ गए हैं सार्थक की मदद से। तो इनको यहाँ तक पहुँचाने में आपको क्या-क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्या-क्या आपके विघ्न आए, आप बता सकते हैं?
इनके पास तो पहले सबका वो प्रॉब्लम होता है वो पैसा। एक तो वो इनका घर भी इतना सा छोटा है, उनके पिताजी मजूरी का यानी कि बिल्डिंग का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वहाँ जो कोई काम मिलता है उनको वो करते हैं। और ये घर काम यानी बर्तन मांजना, खाना बनाना ये 2-3 जगह करती है। और इतने में तो बहुत थोड़ी आमदनी होती है, तो खर्चा बहुत और 3-3 बच्चों को पालना बहुत दिक्कत होता है। पहले से ही ये बच्चे सब बहुत होनहार है, होशियार भी है। तो इनका पहले से ये था कि उनको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। उनके रिलेटिव्स या आजू-बाजू का वो देखती है, जहाँ काम करती है वहाँ का भी वो बच्चों देखती को थी। देखते हैं। हाँ, कि वो अच्छे लड़के आगे जा रहे हैं। उनको इनकी इच्छा थी कि डॉक्टर बने, सीए बने, कोई खूब बहुत आगे पढ़ा बढ़े, उनका इंजीनियर हाँ, बने। बच्चों का तो अपने इनको फैमिली का समझ नाम में बड़ा करें। जी, इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें आगे। लेकिन वो स्वाति मैम के घर पे काम करती है, तो वो बातें करते-करते उन्हें भी पता चला। तो उन्होंने बोला कि हम लोग देखेंगे। तो बच्चों ने मार्क्स अच्छे ले लिए, तो हम लोगों ने उन्हें सार्थक में ट्रांसफ़र एडॉप्ट कर लिया। सार्थक में ले लिया। और उन्हें कुछ गाइडेंस दे दिया, वो तो उनका उपयोग कर रहे हैं हर तरह से। वो अच्छा लग रहा है उनको भी। और इनको पढ़ाना तो इनका ये था कि बाकी कुछ ना हो सके, मैं तो मेरी बेटियों को पढ़ाऊँगी, बेटियों को हम नहीं पढ़ाऊँगी। पढ़ सके तो बच्चों को पढ़ाना जी, है। बिल्कुल, वो तो वही बिल्कुल था आपके। पढ़ी-लिखी भी नहीं है, लेकिन उनको इच्छा बहुत थी कि पढ़ाना है मेरे बेटियों को और बेटों को, इसलिए उन्होंने वैसे घर का माहौल भी इनका बहुत ही अच्छा, साफ-सुथरा और वो ऐसे शायद वो कड़क क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रिक्ट स्वभाव की है, तो इसीलिए बच्चे पढ़ते हैं। अनुशासन घर में रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, डिसिप्लिन में और वे लड़कियां घर का काम भी देखती है उनके वो जब उनको बाहर मदद कर जाती है देती तब। हैं। और सबको ध्यान है कि हमें सीखना है पढ़ना है आगे, तो वो माँ की इच्छा पूरी करते हैं। तो उनको ऐसे जो हेल्प मिली तो उन्होंने उनका बिल्कुल सही उपयोग किया है। तो उनको आप स्वाति दिक्कतें मैम के घर पे काम करते थे इसलिए आपको सार्थक के बारे में पता चला। हाँ तो स्वाति मैम ने ही आपसे कहा कि बच्चों को सपोर्ट कर सकते हाँ हैं मतलब। बहुत वो कष्ट बहुत करती है, हर जगह काम करती है, लेकिन वो उतना मेहनत काफ़ी हाँ, नहीं मतलब उतना होता। कमा नहीं पाते तो हैं। ऐसे वो होते हैं कि मैं क्या करूँ और इन बच्चों के लिए ऐसा उनकी हर हर तरफ से ये रहता है, उनका प्रयत्न रहता है कि बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो इनको गाइडेंस मिला तो वो अब अच्छा लग रहा है। जितना हो सके वो खुद ही करते हैं और सार्थक तो है ही साथ में। तो हम लोग मेंटर्स खाली उन पे ध्यान रखते हैं, फ़ोन करते हैं, कुछ सलाह देते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछते हैं। घर की भी कोई प्रॉब्लम में जी, आपको सपोर्ट करते हैं। सब कुछ। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। Sarthak has come around now 8 years since its inception. Yes. So, what were the challenges that you faced? How did you overcome them? And what are the challenges that you still face? चैलेंजेस अगर मैं बताऊं तो फाइनेंशियल चैलेंज मुझे चैलेंज नहीं लगता. Of course, finance is Important. definitely it's important element, but the most important fact is and most challenging fact is getting like-minded people, getting a support from same like-minded people and passionate people. वो मुझे पहला चैलेंज लगता है. But I was very fortunate. I was able to get lots of support and help from very good people. And I always encourage कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा more than funding, I would look forward to this kind of a support. दूसरा है कि trained resources मिलना. You know, we always look for the trained resources. Skilled और trained resources मिलना बहुत challenging है हमारे लिए. Reaching out to communities, reaching out to people also is one of the challenge. Of course, because of social media and people like you have, made our task much easier. Or most important thing about the challenges is actually changing the mindset of people. यहाँ पे माइंडसेट में दोनों की बात कर रही हूँ. माइंडसेट ऑफ पीपल विथ whom वी आर वर्किंग. जो लोग मतलब पेरेंट्स बेसिकली, बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो. दे आर नॉट रेडी टू चेंज द माइंडसेट के स्किल. इसके अलावा भी कोई इसके अलावा भी बहुत सारे careers हैं. ऑप्शंस है, करियर ऑप्शंस है, एंड द किड कैन डू वेल इन बोथ द ऑल द ऑप्शंस. सो पहले वो माइंडसेट बदलना जरूरी है. अबाउट गर्ल्स एजुकेशन ऑल्सो द माइंडसेट बदलना जरूरी है कि आपके बच्ची को पढ़ाओ. बहुत सारे पेरेंट्स है वो अभी रियलाइज कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन अभी भी बच्चों को पढ़ाने का थोड़ा कम है. तो वो माइंडसेट चेंज करना ही मेरे लिए ज्यादा चैलेंजिंग है.
And how do you see the way forward for Sarthak Mitra? Of course, we would like to, in next 5 years, I would like to cross 10,000 students. I would like to reach out to maximum students possible. 700 to 10,000 Yeah, students. let's. God's blessing. Yes. And And apart from that, I would like to increase the network of mentors. I would like to make a movement, a mentoring movement. क्योंकि mentoring ऐसी चीज है, everybody should feel that they can actually support one child. अगर इसके लिए कोई भी you don't have to do something great and unusual. In a normal day to day life आपको बहुत आसान है mentoring करना, because आप किसी एक बच्चे को भी अपना टाइम दोगे, अपना नॉलेज दोगे, and you have so much to give. You can actually share the information, share your knowledge, share your love, share your unconditional support to somebody, and just थोड़ा time invest कीजिए, then you can definitely change someone's life. तो आपको अगर सोसाइटी को चेंज करना है, आपको अगर समाज को बदलना है, आपको कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बच्चे को आप सपोर्ट adopt कीजिए, करिए. दैट्स ऑल. इससे बहुत सारा फर्क पड़ेगा, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू मेक दैट शिफ्ट दैट यू आर लुकिंग फॉर. इफ यू वांट टू मेक समथिंग पॉजिटिव, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म, और दैट्स हाउ यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन. हर बच्चा जो एजुकेट होता है उसके साथ उसकी फैमिली भी एजुकेट होती है, एब्सोल्युटली. एम्पावर होती है, एक बच्चा अगर सीख गया, एक बच्ची अगर सीख गई, तो वो पूरा फैमिली आगे लेके जाती आगे है. बदल जाती है. यस. So, are your accounts independently audited, Swati? Yes, it is mandatory. It Since is. ours is a Section 8 company, and so the ROC filing and all the compliances are mandatory for us. So audit, accounting has been handled by the trained staff. At the same time, there is a audit regulations. So our audit is, of course, definitely done by a separate audit firm. Okay. And what type of CSR corporate funding have you received, and what type of further corporate funding are you looking for to So take your way forward? yeah, we have been receiving funds from different corporates. First and foremost, हमारा खुद का funding है. उसके साथ we have individual donors and donations as well. But we also have corporate fundings, and corporate fundings is mostly for the scholarships. Okay. At the same time, there also it is very difficult. शुरू में corporates को believe करना कि ये 5 साल का project है, because even in corporates there is a typical mindset. Because most of the corporates will have कि हाँ, एक साल इस साल हम लोग हाँ, ये एक साल support का करेंगे, we will fund for the education, next year we will fund for environment, third year we will fund for this. Everybody has their focuses, but तो शुरू में मुझे बहुत कठिन गया कि उनको समझाना कि no, this is a 5-year process. आपको 5 साल तक If you support want करना. a sustainable development, if you want a sustainable change, then you have to invest 5 years. और उसके लिए, but I was very lucky that people got convinced, and maybe they were able to see the future कि 5 साल के बाद क्या होता है. And now we have lots of corporates supporting us for the 5-year program. And what type of visibility would you be able to give to your corporate donors? जैसे आपने कहा प्रोजेक्ट के नाम के साथ कंपनी का कॉर्पोरेट का नाम हाँ, जोड़ते हाँ, हैं. हाँ. इसके अलावा any other type of visibility, do you mention them in your annual reports, or Yes, how yes. does it go? Basically, it's a relationship, It's not a donor and donee. We always consider our corporates as our partners. So any project will be constructed and designed while considering their involvement as well with the corporate. तो जो भी project होता है वो corporate banner के अंडर होता है. We design the project, we take their value, views and values into consideration. और ये सारा प्रोजेक्ट जो होता है उसकी ट्रांसपेरेंसी हम इतनी रखते हैं कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए बैनर उनका होता है, नाम भी उनका होता है. Even on our website, if you see, for every project we always mention the name of the corporate जिन्होंने ये प्रोजेक्ट फंड किया है. तो that is always there on every report, in every let's say banner project के नाम पे.
कॉर्पोरेट का नाम पहले होता है, एंड दैट इज बेसिकली बिकॉज वी वांट देम कि ऐसा नहीं है कि आप डोनेशन दिया और यू नो दैट द रिलेशनशिप एंड्स. नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज इट्स अ ऑनगोइंग Ongoing. रिलेशनशिप, और हम 5-5, 7-7 साल एक एक कॉर्पोरेट के साथ काम करते हैं. सो इट्स मोर ऑफ अ पार्टनरशिप, एंड वी एनकरेज देयर पीपल टू इन्वेस्ट, स्पेंड टाइम विद अस, टू विद स्टूडेंट्स, गिव देयर व्यूज, शेयर देयर नॉलेज. उनके एम्प्लॉयज हमारे मेंटोर्स बने. Employee दैट इज हाउ वी engagement. प्रमोट. यस. And what type of reports would you be able to give to corporate donors as per the compliances of the Companies Act? रिपोर्ट्स आर फॉर डिफरेंट नेचर. पहले तो हम लोग जो भी सेशंस लेते हैं उसके अलग अलग रिपोर्ट्स होते हैं. सो वी सेंड देम रिपोर्ट्स एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन. Okay. सिलेक्ट होने में कितने फॉर्म्स है, how many forms that we have received, how many have we selected, how many students are appear for interviews, how many aptitude tests have happened. So we give them the complete data. Uske baad we share the name and addresses and everything Of the beneficiaries. Yes, we prepare file for each and every student, और ये file हमेशा share होती है हमारे CSR partner के साथ. They should get the idea. At हर what एक बच्चे को frequency? Every month or every month, every month? every quarter, और उस मंथ में जितने भी सेशंस हुए हैं, प्लस वी प्रिपेयर प्रोफाइल ऑफ एवरी स्टूडेंट. वो प्रोफाइल हम लोग शेयर करते हैं CSR के साथ. सो सेशन जो होते हैं, सेशन का रिपोर्ट जाता है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स आर देयर, 6 मंथली फंड यूटिलाइजेशन वी सेंड, 6 मंथली रिपोर्ट्स आर सेंड, एनुअली ऑफ कोर्स रिपोर्ट होता ही है, फंड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट भेजना पड़ता है, एंड एवरीथिंग इज बीन शेयर्ड विद दैट. And what about the child's progress report? That Yes, also is absolutely. that is So, also shared with the बच्चा क्या donors. कर रहा है, व्हाट आर द स्पेशल अचीवमेंट्स. तो हर एक बच्चे का एक सेपरेट प्रोग्रेस रिपोर्ट रेडी होता है. वी हैव अ सेपरेट प्रोग्रेस शीट जिसमें बच्चा सेशन अटेंड करता है नहीं, वेदर ही इज एक्टिव, वेदर ही इज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम्स, वेदर ही इज अटेंडिंग इट, व्हाट आर हिज मार्क्स, उसने 11th में कितना है, 12th में कितना है, उसके बाद उसके बाकी के प्रोग्रेस कैसे है, वेदर ही इज इंटरेस्टेड इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वेदर ही इज डूइंग एनी सोशल वर्क, वो भी मैटर करता है. सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ शीट जिसमें उसका प्रोग्रेस मैप होता है, और जब तक जितने साल तक बच्चा हमारे साथ रहता है, उस बच्चे का वो फाइल हमारे साथ ही रहता है, एंड वी हैंड इट ओवर टू देम. And जो आप donors के साथ शेयर करते हैं हम लोग every शेयर year. कर से. यस, Every there year. are certain donors which are actually, मतलब apart from corporate donors, there are certain donors who are actually supporting 2 or 3 girls, you know. कभी कभी वो बोलते हैं कि मुझे 4 बच्चियों को सपोर्ट करना है, तो we make sure कि वो बच्ची का पूरा प्रोग्रेस उनके साथ शेयर करें. तो we also send those mails every quarter, every month. Every month and every Yeah, quarter. yeah. Okay. So apart from these activity, जो भी एक्टिविटी सार्थक में होती है, मे बी स्कूल किट डिस्ट्रीब्यूशन हो या एनीथिंग विच इज हैपनिंग इन अदर वर्टिकल्स आल्सो, वी शेयर इट विद आवर डोनर्स. ये न्यूज़ लेटर जाता है, एवरी मंथ देयर इज अ न्यूज़ लेटर, एंड वी ब्रॉडकास्ट द न्यूज़ लेटर टू एवरीबडी. Great, Swati. You're doing a very good job, and your Thank you. team, and we wish you all success. Education is empowerment, and knowledge increases with sharing. That is precisely what Sarthak is doing, and we wish you and your team all success in the way forward. For our viewers who want to support Sarthak by being a mentor, volunteer, counselor, or a donor, please refer to the link in the description of the video. For our viewers who are still with us, a big thank you for your support. For NGOs who wish to be showcased on our podcast, please refer to the link in the description of the video and do contact us. See you again soon next time. Till then, goodbye, take care, and stay safe. Thank you.